Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is sliding filament model. Topic 15, chapter 16, sport and movement. Sliding filament model is related to the functioning of muscle. How muscles function, how they work is studied in sliding filament model. Sliding filament model was presented in 1940. It was presented by H. Huxley, A. F. Huxley and their colleagues. Sliding filament states that both thick and thin filament that we discussed in the previous lecture. In ultrastructure of myofilament, both thick and thin filament actin and myosin chain slide over each other. कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं और पास करके मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फैलते हैं. सो ये आई हैव ड्रॉन द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मसल मायोफिब्रल. Myofibral was consist of thick and thin filament, thick and thin band or light and dark band. According to this model, when muscle contract, three function takes place. One, thin and thick filament slide over each other. ये जो ब्लू लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं थिक फिलामेंट्स को और लाइट ब्लू लाइंस किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, थिन फिलामेंट्स को. When muscles work, both thick and thin filaments slide over each other. एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते हैं. सेकंड, Z लाइन ब्रॉड क्लोजर टू ईच अदर. Z लाइन एक दूसरे के क्या आ जाती है, करीब आ जाती है. Z लाइन मैंने पहले ही बताया आपको, Z लाइन्स आर द लाइन्स दैट बाइसेक्ट द लाइट बैंड, जो कि लाइट बैंड को क्या करती हैं, काटती हैं. थर्ड वन इज एच जोन डिसअपेयर, और जो एच जोन है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है. एच जोन इज प्रेजेंट इन द डार्क बैंड, और जो डार्क बैंड के अंदर जो एच जोन है वो एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है. हियर सो फर्स्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे स्लाइड ईच अदर. Light band and dark band. Light band is made up of thin filament, mean actin की चेन से मिलके बनता है, and dark band is made up of thick filament, mean myosin की चेन से मिलके बनता है. When muscles contract, both these chains slide over each other and overlap each other. अभी भी इन्होंने एक दूसरे को overlap किया हुआ है, but to some extent, बहुत थोड़ा. यहाँ से इतना एरिया you can see ओवरलैपिंग, बोथ बैंड्स ओवरलैपिंग ईच अदर. जब ये पूरा कॉन्टैक्ट हो जाता है, दिस इज रिलैक्स्ड स्टेट. इसके अंदर क्या है, मसल रिलैक्स्ड है और इसके अंदर वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों बैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, बट टू ग्रेटर एक्सटेंट. हियर दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर बट टू स्मॉलर एक्सटेंट. When they are fully contracted, they overlap each other to a greater extent. Sarcomere reduce in length. Sarcomere अपनी लेंथ में क्या हो जाता है, reduce. So this is all about the sliding filament model that was presented by H. Huxley, A. F. Huxley and their colleagues. According to this model, thick and thin filament that is made up of actin and myosin chain pass each other. Z line brought closer to each other. H zone disappear. Both filaments overlap each other. This is the most important point, to greater extent. And muscle become contracted. Muscle become shorter. Muscle की जो length है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. So this is all about sliding filament
model, you have to draw the diagram of this model and important points, important events that takes place during the contraction and relaxation of muscle. Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss how the bridges are controlled, कि bridges कैसे control होते हैं. In the last lecture we discussed functioning of muscle according to the Huxley model or sliding filament model. Now we discussed how these bridges, how these muscles attach to each other or bind to each other. So according to this model, our myofilament is consist of thick and thin filament. We discussed earlier its head are globular. इनके जो heads हैं वो क्या होते हैं, globular, and these globular head act as a cross bridge. किसके तौर पे एक्ट करते हैं, क्रॉस ब्रिज के तौर पे, मीन कि ये एक दूसरे की बाइंडिंग में रोल प्ले करते हैं. नाउ आवर टॉपिक इज हाउ दिस ब्रिजेस आर कंट्रोल, कि ये ब्रिजेस कब टूटते हैं और कब बनते हैं, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इस ब्रिजिंग को क्या करता है, कंट्रोल. थिक एंड थिन फिलामेंट. थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अगेन मायोसिन प्रोटीन and thin filament is again made up of actin protein. When our body is in relaxed stage, जब बॉडी क्या होती है, रिलैक्स्ड स्टेज में होती है, मसल रिलैक्स स्टेज में होता है, ट्रोपोनिन, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट ट्रोपोमायोसिन, ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट एक्टिन चेन्स, and these spots represents troponin. One troponin binds to the actin tropomyosin, another binds to the actin chain, and third one binds to the calcium ion. So when muscles in a relaxed state, tropomyosin dispose in such a way, ट्रोपोमायोसिन अपने आप को एक्टिन के चेन पे इस तरह से लिपेटती है कि जितनी भी बाइंडिंग साइट्स होती है जहाँ पे इस हेड ने अटैच करना होता है, वो सारी बाइंडिंग साइट्स को क्या कर लेती है, कवर. उन सारी बाइंडिंग साइट्स को क्या कर लेती है, कवर्ड कर लेती है. अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है, दे नीड टू बाइंड ईच अदर. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या बाइंड करता है अपने साथ, कैल्शियम आयंस. ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है ये अपने साथ क्या करेगा, कैल्शियम आयन बाइंड करेगा. एंड आफ्टर दैट बाइंडिंग दिस बाइंडिंग मैकेनिज्म, दिस बाइंडिंग रिएक्शन हेल्प्स इन द डिस्प्लेसिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन चेन्स. ये ट्रोपोमायोसिन चेन्स को अपनी तरफ उस जगह से हटाने में क्या करेगा, हेल्प. एक दफ़ा ट्रोपोमायोसिन की चेन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होगी, देन बाइंडिंग साइट्स बिकम अनकवर्ड और एक्सपोज्ड. फिर वो बाइंडिंग साइट्स जहाँ पे इनके ग्लोबुलर हेड ने अटैच करना है, दे बिकम एक्सपोज्ड, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. बाइंडिंग साइट्स बिकम एक्सपोज्ड ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन. जब एक दफ़ा इनके दरमियान में लिंक बन जाता है, देन वी नीड एनर्जी टू हाइड्रोलाइज दिस लिंक. This energy is provided in the form of ATP. So दो चीज़ें इसमें रोल प्ले कर रही हैं, कैल्शियम एंड ATP. कैल्शियम प्लेज रोल इन द बाइंडिंग एंड ATP प्लेज रोल इन द हाइड्रोलाइजिंग और अनबाइंडिंग, इन हाइड्रोलाइजिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्रिज. So this is all about how bridges are controlled. We discussed two chains. अब दोनों चेन्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, दे नीड टू बाइंड. वो बाइंड कहाँ पे होंगी, बाइंडिंग साइट्स तो सारी कवर्ड है. किसने कवर्ड किया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन ने. ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कौन करेगा, ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन कैसे डिस्प्लेस करेगी, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस. आफ्टर डिस्प्लेसिंग जब एक्सपोज हो जाएगी बाइंडिंग साइट, फिर क्या होंगी, इसका क्रॉस ब्रिज, इसका ग्लोबुलर हेड उस क्रॉस ब्रिज के साथ क्या करेगा, अटैच.
अटैचमेंट के बाद ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन with the help of ATP, and this ATP is provided by the large number of mitochondria present in the cells of muscles. So this is all about our today's lecture. If a person dies, अगर एक शख्स मर जाता है तो नंबर ऑफ ATP फॉल्स इन बॉडी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है? स्टॉप। तो उसके बाद ज़्यादा ATP अवेलेबल नहीं होती ताकि वो ब्रिजेस को तोड़ सके। इन रिजल्ट क्या होता है? ये ब्रिजेस आपस में स्ट्रॉन्गली एंड मोर स्ट्रॉन्गली क्या हो जाते हैं? बाइंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ATP एंड देयर बॉडी बिकम स्टिफ। दिस कंडीशन इज नोन एज रिगर मोर्टिस। द mechanism of stiffening of body due to the lack of ATP after death, this is known as rigor mortis. So this is all about our today's lecture.